অনুব্রতহীন বীরভূমে অভিষেকের নবজোয়ার কর্মসূচি। মুরারইয়ের সভা থেকে অমিত শাহকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইডি বলছে যে গরু চুরি করতে প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ মদত দিয়েছে বিএসএফ। বিএসএফ কার অধীনে? অমিত শাহ। ক্ষমতা আছে অমিত শাহকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে? এই বিএসএফ কার অধীনে? বিএসএফ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম কি? অমিত শাহ। তাহলে বিএসএফ মদত দিয়ে গরু পাচার করে যে টাকা রোজগার করে সেটা অমিত শাহর কাছে যায় না তার ছেলের কাছে যায়? কে প্রশ্ন করবে? এই যে গুলি চালাচ্ছে এখানকার পুলিশ, তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে অ্যারেস্ট করা উচিত, তার নাম এফআইআর করা উচিত। 302 দেওয়া উচিত। মানে পুলিশ মার্ডার করছে, গুলি চালাচ্ছে। বিএসএফ দেশের কাজে দিনরাত দাঁড়িয়ে, ওনারাই বিএসএফ কে, সেনাকে, বিএসএফ কে চোর বলে, যারা প্রাণ দিচ্ছে দেশের জন্য। এটাই হচ্ছে টিএমসির কালচার, তারা তোলাবাজ বলে। পেট্টাপুরে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সীমান্ত রক্ষায় বিএসএফ এর প্রশংসা করলেন অমিত শাহ। बीएसएफ ने भी बर्फीली चोटियों से लेकर थर पार करके रण तक, भूमि सीमा से लेकर बंगाल की समुद्री सीमा तक, नदी की सीमा तक, जंगल महल तक ढेर सारी हमारी भूमि की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। 150 গুণ সম্পত্তি বাড়ায় গ্রেফতার করা হয়েছে অনুব্রত কন্যা সুকন্যা মণ্ডলকে। 80,000 গুণ সম্পত্তি বৃদ্ধিতে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না অমিত পুত্র জয় শাহকে? বীরভূমের সভা থেকে আক্রমণ শানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 12 কোটি টাকার বাড়িতে থাকেন অভিষেক, তার কি ব্যবসা আছে? পাল্টা প্রশ্ন তুললেন দিলীপ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তীতে জোড়াসাঁকোয় অমিত শাহ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদানের পর ঘুরে দেখলেন ঠাকুর বাড়ি। পেট্রাপোলে সরকারি অনুষ্ঠানেও তার গলায় শোনা যায় রবি বন্দনা। শাহসূচিকে কেন্দ্র করেছিল কড়া নিরাপত্তা। ভুল করে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান সে কথাও বলা যায়, বিদ্যাসাগরের মূর্তিও ভেঙে ফেলা যায়। আবার নির্বাচনের কারণে না জেনে লিখে নিয়ে এসে অথবা টেলিপম্পটারে লিখে নিয়ে এসে অনেক বড় বড় কথা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তীতেও বাদ গেল না রাজনীতি। বাঙালি আবেগকে নাড়া দিতে পারবেন না অমিত শাহ? কেন মণিপুরে যাচ্ছেন না? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সফর নিয়ে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। তৃণমূল একটু ব্যাকডেটেড, মণিপুর এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে, সর্বক্ষণ নজর রাখা হচ্ছে, পাল্টা সুকান্ত মজুমদার। আমি মনে করি রাজ্যপালকে কেউ হয়তো ভুল বোঝাচ্ছে, মেবি। পাল্টা ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল। Chief Minister is saying that you are being ill-informed. Not the political place, this is spiritual place. I would like to be well informed. রাজ্যে আইনগত, সাংবিধানিক বা রাজনৈতিক কোনো সংকট তৈরি হলে রাজ্যপাল শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের মতো নিষ্ক্রিয় থাকবেন না। রাজ্যপালের হ্যামলেটের উপমার পাল্টা ম্যাকবেথের উদাহরণ টেনে আক্রমণ শানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে বাইপাস করে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যে কুক্ষিগত করার যে মানসিকতা দেখা যাচ্ছে, যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কালকে উল্লেখ করেছেন, এটা ঠিক হ্যামলেটীয় লাগছে না, বরং অনেকটা ম্যাকবেথের মতো লাগছে। মুক্তি পাওয়ার 4 দিনের মাথায় পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ দ্য কেরালা স্টোরি। আইসিস ও তার জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এই ছবি। তাহলে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আইসিসের প্রতি সহানুভূতিশীল? টুইটে আক্রমণ শুভেন্দু অধিকারীর। কে ব্যান করতে বলেছিল? প্রশ্ন মোহাম্মদ সেলিমের। রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তার দায়িত্ব অনেক বড়। সম্প্রতি মূল কথা, পাল্টা শশী পাঁজা। শুধু 2014 নয়, 2012 টেটে হয়েছে বেআইনি নিয়োগ। চাকরি প্রার্থীদের থেকে টাকা তুলে কুন্তল ঘোষ ও অন্যান্য এজেন্টদের দিয়েছিলেন অয়নশীল। শান্তনুর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া 346 জনের নামের তালিকা তৈরি করেছিলেন কুন্তলই। ইডির দেওয়া চার্জশিটে এমনই দাবি করা হয়েছে বলে খবর সূত্রের। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতি সহ বাকি মামলাকারী সংগঠনকে শহীদ মিনারে অবস্থানের অনুমতি দিল হাইকোর্ট। এক্ষেত্রে লাগবে সেনাবাহিনীর ছাড়পত্র। সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যে 7টা পর্যন্ত অবস্থান করা যাবে। রাতে শুধুমাত্র 15 জন আন্দোলনকারীকে থাকার অনুমতি। বকেয়া বেতন ও স্থায়ীকরণের দাবিতে এই অবস্থান কর্মসূচি। পূর্বাভাস মতোই বঙ্গোপসাগরে তৈরি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ। আগামীকাল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। কাল রাজ্যের বেশিরভাগ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা। 14 থেকে 15 মের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় 150 কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়তে পারে বাংলাদেশ মায়ানমার উপকূলে, জানালো আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। गुरुदेव और शांति निकेतन, मित्रों, आज मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। मैं मेरे जीवन में 2 बार शांति निकेतन गया हूं, मगर शांति निकेतन के बारे में
मैंने खूब पढ़ा भी है और जानकारी भी प्राप्त की है। शांति निकेतन का प्रयोग इस समग्र विश्व के शिक्षाविदों के लिए अनुकरणीय है और शांति निकेतन का प्रयोग ही समग्र विश्व की शिक्षा को नया रास्ता दिखाने वाला प्रयोग है। भारत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि शांति निकेतन के प्रयोग को और पुख्ता करे और मजबूत करे और विश्व के सामने हम रखने का प्रयास करें। गुरुदेव ने कहा था, विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। विश्वविद्यालय एक माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा लोगों को अपने मस्तिष्क का धन दूसरों को वितरित करने में सहायता मिले। रटी रटाई शिक्षा के विपरीत उन्होंने शिक्षा का एक नया विचार उस वक्त के जमाने में रखा था और वो महात्मा गोखले का उस निवेदन का साक्ष्य है। महात्मा गोखले ने कहा था कि बंगाल जो सोचता है भारत और विश्व 50 या 100 साल के बाद कर पाता है। मैं आज भी मानता हूं कि शांति निकेतन का विचार न केवल भारत, समग्र विश्व के शिक्षाविदों के लिए ये प्रयोग समझकर अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय है। एक छोटे से विद्यालय के रूप में शांति निकेतन का विधिवत उद्घाटन 21 दिसंबर 1901 को जब उन्होंने किया, तब इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी केवल 5 बंगाली छात्र इसके छात्र थे। एक प्रयोग करते वक्त इनके मन में कितनी श्रद्धा होगी कि आगे जाकर ये प्रयोग न केवल देश, न केवल बंगाल, समग्र विश्व के शिक्षा जगत को बदलने वाला प्रयोग होने वाला है और इससे भारत की अपनी शिक्षा मूल्य और अस्मिता से युक्त कराने का ये प्रयोग साबित हुआ है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विचार पद्धति से पुनर्जीवित करने का इससे सुंदर प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। गुरुदेव का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान बहुत बड़ा था और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का आप अभ्यास करोगे तो दिखाई पड़ेगा कि राजनीतिक क्षेत्र में कहीं पर भी जुड़े बगैर समग्र आजादी के आंदोलन पर गुरुदेव टैगोर का बहुत बड़ी विचारों का असर देखने को मिलता है। अंग्रेजों ने 1898 में राजद्रोह विधेयक जब पारित किया, राष्ट्रवादी लोगों को विद्रोही बताने के लिए इसके अंतर्गत जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर दिया गया और जिस दिन यह विधेयक कानून बन गया, कवि गुरु ने इस विवाद में उसी दिन कूद पड़े और अपना प्रसिद्ध आलेख क्रांत रोध कलकत्ता की एक सार्वजनिक सभा में पढ़कर अपना विरोध उन्होंने मुखर किया और समग्र देश के अंदर ये विरोध को वाचा मिली। बंग भंग के समय भी गुरुदेव के विरोध ने बंग भंग की घटना को समग्र भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। देशभक्तिपूर्ण गीतों के गाने के अपराध में जब छात्रों को कॉलेजों से निकाले जाने लगा, ऐसे छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ढेर सारे शिक्षाविदों को एकजुट करने का काम भी उन्होंने किया और एक परिषद का भी गठन किया। सुपरिचित दार्शनिक और क्रांतिकारी योगी अरविंद इसके प्रथम आचार्य बने। गुरुदेव और राष्ट्रगान, गुरुदेव एक ही व्यक्ति समग्र विश्व के अंदर ऐसे हैं जिनके लिखे हुए 2 गीतों को 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान होने का सम्मान मिला है, भारत और बांग्लादेश। और शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने राष्ट्र की सीमाओं के ऊपर, राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं के ऊपर अपने साहित्य की इतनी
अमिट छाप जिसने छोड़ी होगी। जब जलियांवाला कांड हुआ तब इसका भी मुखर कर विरोध किया और गुरुदेव ने भारत के गवर्नर जनरल को पत्र लिखा कि कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब सम्मानप्रद उपाधियां हमारी शर्म को लोगों के सामने बढ़ा देती हैं। और उन्होंने पत्र लिखकर नाइटहुड की उपाधि को लौटाने के लिए पत्र लिखा, मगर उसके बाद भी लोग उनको सर रविंद्रनाथ कहने से रुके नहीं। हालांकि गुरुदेव उसको पसंद नहीं करते थे। भारत के लोगों को विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाने का सबसे पहले अगर स्वीकृति किसी को मिली तो गुरुदेव टैगोर को मिली। जब उनको नोबेल प्राइज मिला तब ढेर सारे लोगों के लिए आश्चर्य था कि एक व्यक्ति जो गोरा नहीं है इसको नोबेल प्राइज कैसे मिल सकता है। एक अमेरिकन अखबार ने उस वक्त कोट किया था कि साहित्य के लिए किसी हिंदू को नोबेल प्राइज मिलना कोकेशियन प्रजाति के लेखकों के लिए निराशा का कारण अवश्य बना है। उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार यह सम्मान उस व्यक्ति को कैसे मिल गया जो कि गोरी चमड़ी वाला नहीं है। अंग्रेजों ने 1898 में राजद्रोह विधेयक जब पारित किया, राष्ट्रवादी लोगों को विद्रोही बताने के लिए इसके अंतर्गत जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर दिया गया और जिस दिन यह विधेयक कानून बन गया, कवि गुरु ने इस विवाद में उसी दिन कूद पड़े और अपना प्रसिद्ध आलेख क्रांत रोध कलकत्ता की एक सार्वजनिक सभा में पढ़कर अपना विरोध उन्होंने मुखर किया और समग्र देश के अंदर ये विरोध को वाचा मिली। बंग भंग के समय भी गुरुदेव के विरोध ने बंग भंग की घटना को समग्र भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। देशभक्तिपूर्ण गीतों के गाने के अपराध में जब छात्रों को कॉलेजों से निकाले जाने लगा, ऐसे छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ढेर सारे शिक्षाविदों को एकजुट करने का काम भी उन्होंने किया और एक परिषद का भी गठन किया। सुपरिचित दार्शनिक और क्रांतिकारी योगी अरविंद इसके प्रथम आचार्य बने। गुरुदेव और राष्ट्रगान, गुरुदेव एक ही व्यक्ति समग्र विश्व के अंदर ऐसे हैं जिनके लिखे हुए दो गीतों को दो राष्ट्रों के राष्ट्रगान होने का सम्मान मिला है, भारत और बांग्लादेश। और शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने राष्ट्र की सीमाओं के ऊपर, राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं के ऊपर अपने साहित्य की इतनी अमिट छाप जिसने छोड़ी होगी। जब जलियांवाला कांड हुआ तब इसका भी मुखर कर विरोध किया और गुरुदेव ने भारत के गवर्नर जनरल को पत्र लिखा कि कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब सम्मानप्रद उपाधियां हमारी शर्म को लोगों के सामने बढ़ा देती हैं। और उन्होंने पत्र लिखकर नाइटहुड की उपाधि को लौटाने के लिए पत्र लिखा, मगर उसके बाद भी लोग उनको सर रविंद्रनाथ कहने से रुके नहीं। हालांकि गुरुदेव उसको पसंद नहीं करते थे। भारत के लोगों को विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाने का सबसे पहले अगर स्वीकृति किसी को मिली तो गुरुदेव टैगोर को मिली। जब उनको नोबेल प्राइज मिला तब ढेर सारे लोगों के लिए आश्चर्य था कि एक व्यक्ति जो गोरा नहीं है इसको नोबेल प्राइज कैसे मिल सकता है। एक अमेरिकन अखबार ने उस वक्त कोट किया था कि साहित्य के लिए किसी हिंदू को नोबेल प्राइज मिलना कोकेशियन प्रजाति के लेखकों के लिए निराशा का कारण अवश्य बना है। उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार यह सम्मान उस व्यक्ति को कैसे मिल गया जो कि गोरी चमड़ी वाला नहीं है। टोरंटो के द ग्लोब ने लिखा, पहली बार नोबेल पुरस्कार इस व्यक्ति को मिला है जिसको हम गोरा नहीं कह सकते। गुरुदेव के विचार
कवि गुरु के विचार आज भी सांप्रत भारत के लिए हमेशा के लिए मार्गदर्शक रहेंगे। आज राजनीति के अंदर जिस प्रकार की संकुचितता को हम हर जगह पे देखते हैं, गुरुदेव का जो राजनीति के लिए, समाज जीवन के लिए, कला के लिए और राष्ट्र की भावनाओं के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए जो उन्मुक्त विचार था, इससे सुसंगत नहीं है। सभ्यता के संकट नामक उनके निबंध को अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इनका विचार क्या था। और उन्होंने इसी निबंध के अंदर साहसपूर्ण शब्द थी से विश्व का राजनीति के बारे में अपना गहरा चिंतन व्यक्त किया था। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब गुरुदेव के बारे में ज्यादा शब्द कहना मेरे लिए असंभव है, मगर उनके लिए मैं इतना ही कहता हूं कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके व्यक्तित्व को और कर्तृत्व को अगर समझे तो कहा जाता है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। आज भी उनके विचार इतने ही प्रासंगिक है। आज भी सांप्रत समय में भी एक सदी के पहले जो विचार थे वो उतने ही प्रासंगिक है। ये हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। न केवल बंगाल, न केवल भारत, समग्र विश्व की राजनीति, साहित्य, दर्शन और धर्म के अनेक प्रकार के पहलू को उन्होंने छूकर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, ये समग्र विश्व की संपदा है, समग्र विश्व की पूंजी है। और हर भारतीय को ये अपनी पूंजी पर और कवि गुरु के अपने योगदान पर, विश्व के विचारों को समृद्ध करने के योगदान पर हमेशा सम्मान रहेगा। आज मैं उनकी 162वीं जयंती पर, वैशाख के 25वें दिन पर मनपूर्वक उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके विचार हमेशा हमने प्रेरणा देते रहे और आज के समय में उनके विचारों के अनुरूप हर क्षेत्र में हम बदलाव कर पाए, यही ईश्वर प्रार्थना के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।